بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے رخ پر سوچا ہے آخر ذکر کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان سے نکلنے والا ایک لفظ ہے یا پھر وہ نور ہے جو انسان کے سینے کے اندھیروں کو چیر کر اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے؟ کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں اور صرف تو اور تیرا رب جاگ رہے ہوتے ہو، تب اگر تو خاموشی میں اللہ کہہ دے تو کیا تو نے محسوس کیا کہ اس لفظ کے ساتھ تیری روح بھی کانپ اٹھتی ہے؟ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو صرف اس کی زبان نہیں، اس کی روح بولتی ہے، اور وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب زمین کی آوازیں تھم جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن ایک تسبیح بن جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر وہ نہیں جو زبان دہراتی ہے، ذکر وہ ہے جو دل کو زندہ کر دے۔ یہ الفاظ جیسے دل کے اندر بجلی بن کر گرتے ہیں، کیونکہ اگر ذکر صرف آواز ہوتا تو ہر بولنے والا ولی ہوتا، مگر نہیں، ذکر تو دل کا عمل ہے، اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو یاد خدا میں دھڑکتا ہے۔ آج کی اس محفل ذکر میں ہم اس راز کو جاننے جا رہے ہیں جسے شمس تبریز نے ذکر کا جادو کہا، وہ جادو جو الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک نورانی خاموشی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور احساس بولنے لگتا ہے، جب آنکھیں نم ہوتی ہیں مگر دل مطمئن، جب گناہ یاد آتے ہیں مگر دل پھر بھی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس لمحے بندہ خوف سے نہیں محبت سے روتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اللہ کو پانے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے ایسے یاد کر جیسے تو جل رہا ہے۔ ذکر وہ نہیں جو تسبیح پر گنا جائے، ذکر وہ ہے جو دل کو لرزا دے۔ مولانا رومی جب ان سے ملے تو ایک عالم تھے، لیکن شمس نے ان کے اندر کا عاشق جلا دیا۔ انہوں نے رومی سے کہا، اے رومی، تجھے حرف کی کتابیں یاد ہیں، مگر اس ذات کا نام جس نے حرف بنائے کب یاد کیا تو نے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ آگ تھی، ایک ایسی آگ جس نے علم کو عشق میں بدل دیا۔ اس دن عقل خاموش ہوئی اور عشق بول اٹھا۔ شمس کے نزدیک ذکر صرف تکرار نہیں بلکہ ایک دعوت ہے دل کے جاگنے کی۔ وہ کہتے ہیں، جب تو اللہ کو یاد کرتا ہے تو دراصل اللہ تجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ساری دوریاں مٹ جاتی ہیں۔ شمس کی محفلوں میں لوگ روتے نہیں تھے، وہ پگھل جاتے تھے، کیونکہ ان کا ذکر صرف زبانی نہیں روحانی ہوتا تھا۔ وہ فرماتے تھے، ذکر کا مقصد اللہ کو یاد دلانا نہیں بلکہ اپنے دل کو جگانا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ یاد میں ہے، بس ہم غافل ہو گئے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص روز شمس تبریز کی مجلس میں آتا مگر چپ چاپ بیٹھا رہتا، نہ بولتا، نہ روتا، نہ تسبیح گھماتا۔ ایک دن ایک مرید نے کہا، حضرت، یہ شخص روز آتا ہے مگر کچھ کہتا نہیں، کیا یہ ذکر نہیں کرتا؟ شمس تبریز مسکرائے اور بولے، یہ ذکر کرتا ہے مگر اس زبان سے نہیں جو تم دیکھ رہے ہو، بلکہ اس دل سے جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر وہ اس شخص کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بتاؤ تو یہاں کیوں آتا ہے؟ وہ شخص آہستہ بولا، حضرت، میں تو کچھ نہیں جانتا، بس یہاں آتا ہوں کیونکہ یہاں بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔
शायद अल्लाह यही चाहता है कि मैं कुछ ना कहूं, बस सुनूं। शम्स की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, यही तो असल जिक्र है, जब बंदा अल्फाज छोड़कर एहसास में दाखिल हो जाए, जब जबान खामोश हो जाए और दिल बोलने लगे। ये वो दर्जा है जहां तू खत्म हो जाता है और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। इसके बाद वो शख्स कभी कुछ ना बोला, मगर उसके चेहरे पर ऐसा सुकून उतर आया कि देखने वाले भी पिघल जाते। लोग कहते, ये बोलता नहीं मगर इसकी खामोशी में तस्बीह की आवाज आती है। जिक्र का असल सफर जिक्र जबान से शुरू नहीं होता, दिल के अंधेरों से गुजरता है। पहले दिल इनकार करता है, फिर थम जाता है, फिर पिघल जाता है और आखिर में रोशनी बन जाता है। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जब तू दिल से अल्लाह को याद करता है तो तेरी रूह उस आवाज को पहचान लेती है, क्योंकि वो आवाज उसी से पैदा हुई थी। ये वो लम्हा है जब बंदा अल्लाह के सामने नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत अपने अंदर महसूस करता है। और यही वो लम्हा है जहां अंदरूनी इनकिलाब शुरू होता है। एक दरवेश से किसी ने पूछा, तू हर रात खामोशी में क्यों बैठता है? क्या अल्लाह बगैर आवाज के नहीं सुनता? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि अल्लाह मुझे सुने, मैं जिक्र इसलिए करता हूं ताकि मैं खुद अल्लाह को सुन सकूं। ये वो राज है जो सिर्फ वही समझता है जिसके दिल पर अल्लाह की याद का चराग जल चुका हो। एक दिन एक गमज़दा शख्स हजरत शम्स तबरेज के पास आया। आंखों में नमी, चेहरे पर दर्द। कहने लगा, हजरत मैं रोज जिक्र करता हूं मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। शम्स ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा और फरमाया, जिक्र उस वक्त सुकून देता है जब तू मांगना छोड़ दे और सिर्फ याद करना शुरू कर दे। जब याद तलब पर गालिब आ जाए तो सुकून खुद चलकर तेरे पास आता है। ये सुनकर वो शख्स रो पड़ा। कहने लगा, हजरत आज समझ आया, मैं अल्लाह को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी ख्वाहिशों को दोहरा रहा था। उस दिन के बाद उसकी आंखों में शिकवा खत्म हो गया, चेहरे पर रोशनी, दिल में शुक्र और जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज, अल्लाह। शम्स ने फरमाया, जो दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाए उसे कोई वीरानी छू नहीं सकती। ये जुमला दिल में उतर जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। गम बाकी रहता है मगर उसकी चुभन नहीं रहती। दुनिया वैसी ही रहती है मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। जिक्र का मुकाम एक वक्त आता है जब बंदा रोता नहीं, पिघल जाता है, जब उसके आंसू दुआ नहीं, इबादत बन जाते हैं, जब खामोशी भी तस्बीह बन जाती है। शम्स फरमाते हैं, जो दिल जिक्र में डूब जाए उसे कोई गम छू नहीं सकता। वो दिल अब जमीन पर नहीं, अल्लाह की याद में जिंदा होता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया से आजाद हो जाता है। आंखें रो रही होती हैं मगर दिल मुस्कुरा रहा होता है और बंदा कहता है, ए अल्लाह तू ही काफी है। अल्लाह के जिक्र में एक ऐसा जादू है जो गम को शुक्र में बदल देता है, थकन को नूर में और तन्हाई को कुर्ब में। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र वो अमल है जिसमें बंदा खुद को भूलकर अपने रब को पहचान लेता है, और जो अपने रब को पहचान ले उसके लिए मौत भी जिंदगी बन जाती है। जब बंदा मुसलसल जिक्र करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक अजीब सा सुकूत उतरने लगता है। पहले वो लफ्जों से अल्लाह को पुकारता है, फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि अल्लाह उसके दिल में बोल रहा है। ये कैफियत लफ्जों से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे सांसों के साथ अल्लाह अल्लाह खुद ब खुद निकल रहा है। न जबान हिलती है, न सोच चलती है,
बस एक नूरानी खामोशी हर चीज को घेर लेती है। ये वो लम्हा है जहां इंसान को लगता है कि अल्लाह कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल की गहराइयों में है। फिर दुनिया की आवाजें मांद पड़ जाती हैं और सिर्फ एक आवाज बाकी रहती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिक्र का अंजाम, दिल का नूर। जब जिक्र दिल में उतर जाता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदलने लगती है। पहले वो गम से भागता था, अब गम में सुकून पाता है। पहले वो दुनिया के सहारे ढूंढता था, अब सिर्फ अल्लाह पर टिक जाता है। ये वो मुकाम है जहां आंसू रोशनी बन जाते हैं और गम इबादत। बंदा समझ जाता है कि अल्लाह ने कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा था, बस वो खुद गाफिल हो गया था। अब जब दिल में जिक्र का चिराग जल जाता है तो रातें सजदा बन जाती हैं और तन्हाई कुर्बत में बदल जाती है। यही तो असल जिंदगी है, जहां बंदा दुनिया में रहकर भी अल्लाह के नूर में सांस लेता है और वो दिल कहता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। ए अल्लाह, जो ये कलेमात सुन रहा है उसके दिल को अपनी याद से जिंदा कर दे, उसके गम को शुक्र में बदल दे, उसकी तन्हाई को कुर्ब में बदल दे। ए अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर जिनके दिल तेरे जिक्र से आबाद रहते हैं, जिनके चेहरों पर तेरे नूर की झलक होती है और जिन्हें तू अपनी याद में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ए रब, ये जो राज़े जिक्र की महफिल तेरे जिक्र के नाम से सजी है, इसे अपनी रहमत से हमेशा कायम रख। जो इस आवाज को सुनते हैं उनके दिलों में अपने जिक्र का चिराग रोशन कर, उनकी ज़बानों पर तेरी हम्द और उनकी आंखों में तेरी रोशनी उतार दे। ऐ अल्लाह, इस सफरे जिक्र को जारी रख ताकि हर दिल जो सुन रहा है तेरे करीब आता जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।